yesterday's videos I taught you about the basic concepts of macroeconomics, and today we'll continue with those basic concepts of macroeconomics along with some problems so that we can understand better which things can be calculated, can be treated as intermediate good or the final good, or what is stock and flow, what is depreciation, what is capital loss. These things we'll cover in our today's video. So let's start with the problems. So let's go with problems. Whether the following items are intermediate goods or final goods. We'll study it one by one. Wheat flour. If wheat flour is used by the household, wheat flour means एक आटा. तो अगर वो घर के लिए यूज़ हो रहा है, that will be treated as final good. And if it is used by the bakery, it will be treated as intermediate good. Machinery. So machine, if it is used for production, it is the final good. But if it is bought by the dealer to resale, उसको दोबारा बेचने के लिए खरीदा है, तो रीसेल क्या होता है? इंटरमीडिएट गुड. देन बुक्स फॉर अ लाइब्रेरी. ऑब्वियसली बुक्स को आप चेंज नहीं कर सकते, आगे कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो बुक्स को आप क्या करोगे? बुक्स आपकी हमेशा फाइनल कंजम्पशन के लिए रहेगी, स्पेशली इन द लाइब्रेरी. इफ़ वी टॉक अबाउट ये लाइब्रेरी के अंदर जो बुक्स होती हैं फाइनल कंजम्पशन के लिए होती हैं, दैट्स व्हाई इट इज़ फाइनल गुड्स. Cement and brick is always used as an intermediate good. Next is some more examples. Furniture purchased by the school. Obviously, furniture is purchased by the school. School is the end user of it, so it is final good for the school. And if we talk about chalks, dusters purchased by the school, we get confused in this point, as chalk and duster are also the school is the end user, so it should be counted as final good, but it is treated as intermediate good. Why so? Because it is used in the process of value addition for education. Education is the final product of the school, but for providing that education, chalk and duster is acted as the intermediate good. नेक्स्ट इज एक्सपेंडिचर ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन ऑफिस बिल्डिंग. इफ़ वी डू दी एक्सपेंडिचर, खर्चा करते हैं ऑफिस बिल्डिंग के अंदर, तो हमारा क्या हो जाता है? उसको हम लोग क्या लेते हैं? फाइनल एक्सपेंडिचर. क्यों? ऑफिस बिल्डिंग बहुत सेवरल ईयर्स के लिए हम लोगों ने यूज़ करने हैं, नई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है. यहीं पे अगर आता है एक्सपेंडिचर ऑन मेंटेनेंस ऑफ अ बिल्डिंग. मेंटेनेंस, देखो कंस्ट्रक्शन हो गया, नई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होना. मेंटेनेंस का मतलब पुरानी ऑलरेडी बिल्डिंग बनी है, उसको ठीक करने के लिए हम लोग पैसा लगा रहे हैं, तो दैट विल बी ट्रीटेड एज इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर. Now the new topic. In yesterday's Google Meet class, I explained to you about the stock and flows. So here is a brief description about it. Stock is the quantity measured at a particular point of time. एक point of time पे देखा जाता है, जिसके अंदर कोई time dimension नहीं होता. Like we cannot say that per day, per hour, per week, per year, nothing. So stock is measured at a point of time. For example, 100 crore population in India, it is measured at a point of time. Balance sheet of the company measured at a point of time. Stock of raw material in the go down, obviously it is also measured at a point of time. It does not changes, it is not dynamic. So when we talk about flow is the quantity measured at a particular period of time. Here we talk about the time dimensions like per day, per week. Okay, then next is the monthly wages of a labor. For example, this is monthly wages of a labor, profit and loss account of the company, national income. So these are the examples of flow which we count at a particular period of time. Okay, now next, difference between the stock and flows. We'll continue with the difference between stock and meaning. The quantity measured at a particular point of time. When we talk about point of time, it is stock, and flow is the quantity measured during a period of time. So time has stock has no time dimension, but flow has time dimension like per hour, per day, per month, per year. Third point is concept. Concept means in stock is a static concept, it does not change because it is measured only at a point of time. But flow is a dynamic concept, it changes from time to time. For example, stock, we can take wealth, balance sheet, because these are measured at a point of time. But when we talk about flow, investment, always investment is seen as investment done per month, investment done yearly, a profit of the year, profit of the month, loss of the year, loss of the month. So these are calculated in terms of the terms of times. So next, it is when we talk about some more examples of stock and flows. Income of a teacher. If we talk about income is always measured at a point of time, either income, monthly income, or yearly income. So it is a flow. When we talk about machinery it relates to a stock, it is a point of time. Production of sugar, it is measured during a period of time, so it is flow. इन्वेस्टमेंट, इट इज़ ऑल्सो मेजर्ड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम. एक साल में कितना इन्वेस्टमेंट किया, एक महीने में कितना इन्वेस्टमेंट किया, तो इट इज़ ऑल्सो अ फ्लो. टोटल मनी सप्लाई, देखो मनी सप्लाई सुनने में लगता है कि सप्लाई हो रही है तो ये फ्लो होगा, बट नो, इट इज़ टोटल मनी सप्लाई. दैट मीन्स आरबीआई ने कितना मनी सप्लाई इकोनॉमी में कर रखा.
है। तो जब कितना मनी सप्लाई कर रखा है तो वो तो एक लिमिट कर रखा हुआ, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे भी आरबीआई ने इतने रुपए जो हैं इकोनॉमी के अंदर निकाले हुए हैं। तो दैट इज़ अ स्टॉक कॉन्सेप्ट, ध्यान रखना, टोटल मनी सप्लाई इज़ अ स्टॉक कॉन्सेप्ट बिकॉज इट रिलेट्स टू द पॉइंट ऑफ टाइम। नेक्स्ट इज whether the following items are included as a stock or flow. So we'll study it one by one. Savings of household, obviously savings are always looked after as a per month saving or yearly saving, so it is a flow because it relates to the period of time. Income, again it relates to the period of time, during a period of time, per month, per year we measure our income. Profits, same, it is also measured over a period of time. Some other questions, export, obviously export we see कि इस साल में कितना export हुआ. When we talk about the time dimensional time period, it is a flow. Capital formation is another name of investment. Investment भी हम लोग timely देखते हैं. Capital formation, if it is capital then it will be a stock, but now it is written capital formation, that means we are talking about more investment done in the company or in the business or in the economy. So capital formation is also measured during a period of time, that is also a flow. When we talk about expenditure on food by the households, expenditure is also measured during a time period, like monthly expenditure, daily expenditure, so it is also a flow. Depreciation is also measured yearly, so it is also a flow. And number of people employed, when we talk about the number of people employed, we take it as a point of time, इस पॉइंट पे कितने लोग एम्प्लॉयड हैं. तो ये ड्यूरिंग अ पीरियड नहीं है, हमने ये नहीं पूछा कि कितने एक साल में कितने हो जाते हैं, तो इट इज़ नॉट time dimensional. So number of people employed is a stock concept. I hope it is very much clear to you now. Some more examples we can see that balance in bank account. When we talk about the balance, तो at a point of time we are talking about इस टाइम पे कितना बैलेंस है आपके बैंक अकाउंट के अंदर. When we talk about losses, obviously losses are of per year, per month. Amount of bank deposits, here we are not talking about the balance in the bank account, here we are talking about the bank deposits, कितना आप डिपॉजिट कर लेते हैं. तो यहाँ पे टाइम पीरियड आ जाता है, एक महीने में मैं इतना डिपॉजिट कर देता हूँ, एक साल में मैं इतना डिपॉजिट कर देता हूँ. So here time dimension has come, so it is the flow concept. When we talk about the water entering into the tank through the tap, when tap is open it is running like a flow, so it is a flow concept because it relates to the period of time. Now the new topic is investment, that means capital formation. मैंने पहले भी बताया, investment means when we add something to our capital stock, जो ऑलरेडी हमारे पास स्टॉक है. सपोज मेरे पास एक मशीन है, मैंने एक और मशीन खरीद ली, तो वो जो एक और मशीन खरीदी दैट इज फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट. मैंने एक और इन्वेस्टमेंट किया, दैट इज कैपिटल फॉर्मेशन ड्यूरिंग द ईयर. सो रियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट इम्प्लाइज व्हेन द क्रिएशन ऑफ न्यू कैपिटल एसेट्स. जब नई कैपिटल एसेट ले रहे हैं तो उसको कैपिटल इन्वेस्टमेंट बोलते हैं. अगर हम लोग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की बात करें, इफ वी इन्वेस्टेड इन द शेयर्स, डिवेंचर्स, तो दैट विल नॉट बी काउंटेड इन द कैपिटल formation or the investment. Here we only talk about if we invest in the capital assets, right? For example, value of machinery and equipment, if we talk about, if we bought machinery, that will be treated as investment. Construction of building, that will be treated as investment. And inventory stock investment, inventory stock investment like means if we buy some raw materials or stock we buy and we are having that, we are investing in that stock, that will help us in to getting the returns when we'll use our assets along with it. So यहाँ दो तरह की हमारी इन्वेस्टमेंट आ जाती है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट जो रॉ मटेरियल में होती है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जो हम लोग करते हैं हमारी एसेट के अंदर, फिक्स्ड एसेट के अंदर. सो इन्वेस्टमेंट दो तरह की हो गई, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट. ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मीन्स व्हाट, व्हेन वी टॉक अबाउट द टोटल इन्वेस्टमेंट, हमने कितना किया. से फॉर एग्जांपल आई से दैट मैंने 10 लाख की मशीन खरीदी और 5 लाख का जो है वो मैंने रॉ मटेरियल खरीद लिया, तो मैंने 15 लाख की जो है इन्वेस्टमेंट की. तो ये है हमारी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट. व्हाट इज़ नेट इन्वेस्टमेंट, जो मैंने 10 लाख की मशीनरी खरीदी थी उसकी वैल्यू तो कम होगी ही. ऑब्वियसली एक साल जब उसका कंप्लीट हो जाएगा तो वो 10 लाख की तो नहीं रहेगी ना. अगर हम फ़ोन का एक एग्जांपल लेते हैं, आपके साथ बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, जैसे ही हम फ़ोन खरीदते हैं सिम अंदर डालते ही हैं और उसकी वैल्यू कम हो जाती है. आपने जितने में खरीदा होगा उतने में नहीं बिकेगा, उससे कुछ तो कम पैसे में बिकेगा. तो जो भी उसकी वैल्यू कम हो रही है दैट इज़ ट्रीटेड एज डेप्रिसिएशन एंड वी एक्सपेक्ट दैट कि हाँ इसकी वैल्यू कम होगी ही होगी. आज जो हम लोगों ने फ़ोन खरीदा 4G फ़ोन, हमें पता है जैसे ही 5G आएगा 4G फ़ोन्स की वैल्यू खत्म हो जाएगी. जो 3G फ़ोन्स थे उनका वो आउटडेटेड हो गए, उनको कोई नहीं पूछता. सो जो वैल्यू हमें पता है कि हाँ काम करने से कम होगी, गाड़ी लिए गाड़ी चलेगी, सड़क पे कहीं स्क्रैच लगेगा, कुछ होगा तो उसकी वैल्यू कम होगी या नॉर्मल वेयर एंड टियर ड्यूरिंग दी ऑपरेशन और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस कि हमारी टेक्नोलॉजी जो है वो कभी ना कभी आउटडेटेड होगी, जैसे मैंने एग्जांपल दिया 3G और 4G फ़ोन्स का.
सो ग्रॉस में क्या आ जाता है, इट इंक्लूड्स बोथ ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड स्टॉक इन्वेस्टमेंट। तो मैंने बताया फिक्स्ड एसेट भी आ जाएगी और रॉ मटेरियल वगैरह भी आ जाएगा, और इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड होता है। हमने बाहर नहीं निकाला अभी, उसकी जो वैल्यू कम हुई है अभी बाहर नहीं निकाला, हम यही मान के चल रहे हैं जो मैंने एग्जाम्पल दिया 15 लाख का, 15 लाख की इन्वेस्टमेंट। बट नेट इन्वेस्टमेंट क्या है, हियर वी टॉक अबाउट व्हेन द डेप्रिसिएशन इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द वैल्यू। लाइक 15 लाख की अगर मैंने इन्वेस्टमेंट की है और 10 लाख की मशीनरी में से उसकी वैल्यू जो है 1 लाख कम हो गई है, तो वो जो मेरी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी 14 लाख की हो जाएगी। सो हियर डेप्रिसिएशन इज एक्सक्लूडेड। डेप्रिसिएशन मीन्स कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कि हम फिक्स्ड कैपिटल को कंज्यूम कर रहे हैं। डेप्रिसिएशन है क्या, नेट लॉस इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर। नॉर्मल वियर एंड टियर, काम कर रहे हैं तो वैल्यू कम हो रही है, या फिर एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस की टेक्नोलॉजी जो है हमारी आउटडेटेड होगी ही होगी। नॉर्मल वियर एंड टियर क्या होता है, देखो कोई भी हम काम कर रहे हैं, एक्सीडेंटल डैमेजेस हो जाएंगे, वही जो मैंने कार का एक एग्जांपल दिया, गाड़ी चलेगी कहीं स्क्रैच लग गया, कुछ हो गया, ठीक है, तो ये हम इसका तो होना ही होना है, काम करेगी, मशीन चलेगी, कभी नट बोल्ट लूज होंगे, कभी कम होंगे, तो ये तो रहेगा, रिपेयर और मेंटेनेंस इसका चलता रहेगा। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस क्या होता है, जो हमें पता है कि हाँ इसकी टेक्नोलॉजी जो है वो चेंज होगी, लोगों का डिमांड चेंज हो सकती है, लोगों की प्रेफरेंसेस, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज हो सकते हैं। सो दिस इज एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। व्हेन वी टॉक अबाउट कैपिटल लॉस, कैपिटल लॉस इज डिफरेंट फ्रॉम डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हमें पता है कि हमारी एसेट की वैल्यू कम होनी ही होनी है। आज मैंने फ़ोन लिया, मुझे पता है इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, बट कैपिटल लॉस इज फ़ोन चोरी हो गया, तो वो हम पहले से एक्सपेक्ट करके नहीं रखते। हमारी कैपिटल तो गई, नेचुरल कैलामिटीज़ आ जाए, हमने बिल्डिंग बनाई है, मशीन ली है, बाढ़ आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, हमारा सारा कुछ तहस नहस हो जाए, दैट इज़ कैपिटल लॉस। अनफोर्सीन फैक्टर्स आ जाते हैं, जैसे कोई चोरी हो जाए, वॉर हो जाए, तो ये है कैपिटल लॉस। डेप्रिसिएशन के लिए हम लोग प्रोविजन बना के चलते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, लेकिन उसके लिए हम लोग पहले से ही पैसा निकाल के रखते हैं। बट कैपिटल लॉस के लिए हम लोग क्या करते हैं कि कैपिटल लॉस के लिए हम लोग करते हैं इंश्योरेंस। हम लोग पहले इंश्योरेंस लेके रखते हैं कि हमारा कोई चीज़, हमें डर है, फ़ोन का भी आजकल इंश्योरेंस होता है, गाड़ी का भी इंश्योरेंस होता है, इवन अपनी लाइफ का भी इंश्योरेंस होता है। तो इंश्योरेंस इज द प्रोविजन फॉर कैपिटल लॉस एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज मेड फॉर द डेप्रिसिएशन व्हेन वी नो दैट इट इज एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस. Now let us see some difference of it. Depreciation is the loss in the value of asset due to normal wear and tear. It is expected loss in the value of asset. Generally provision is made for this expected fall in the value of assets. Provision कैसे बनता है, हर साल जो हमारा प्रॉफिट होता है, हम प्रॉफिट में से कुछ पार्ट जो है हमारे डेप्रिसिएशन ऑफ के प्रोविजन में डाल देते हैं कि हमें पता है हमारी मशीन जो है अगर हम 10 साल के बाद बेचेंगे तो उतना पैसा हमें नहीं मिलेगा, तो प्रोविजन का जो हमारा प्रॉफिट है, प्रॉफिट का कुछ पार्ट जो है हम उसके प्रोविजन में डालते रहते हैं कि चलो जब हम मशीन बेचेंगे तब हमें ये पैसा काम आएगा। ये हम पहले से बना के चलते हैं बिकॉज वी नो दैट कि हमारी चीज़ जो है लॉस में जाएगी ही जाएगी। कैपिटल लॉस ऑल ऑफ अ सडन लॉस है, इट इज़ द लॉस ऑफ द एसेट ड्यू टू थेफ्ट, नेचुरल कैलामिटी एक्सेट्रा। इट रिड्यूसेस द प्रोडक्शन कैपेसिटी। हमारी एसेट अगर चोरी हो जाती है, कुछ हो जाए तो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी कम हो जाएगी। इट इज़ अनएक्सपेक्टेड लॉस। हम एक्सपेक्ट नहीं करके रखते कि हमारे यहाँ कुछ होगा गलत, हम हमेशा अच्छा अब फ़ोन लिया, हम नहीं सोचते अगले दिन ही चोरी हो जाएगा। सो ये हम इंश्योरेंस लेते हैं जिससे कि हमारा कैपिटल लॉस का प्रोविजन एक बना रहे, हमें कोई नुकसान ना हो, एंड प्रोविजन इज डन बाय गेटिंग इंश्योरेंस done. I hope everything now is clear to you. Now these are some questions which I want you to test your knowledge. You all have to write these questions in your notebooks, and along with it you have to write the answers also. So I now shut down this, and all the best. I hope everything is clear to you. All the best. God bless you all, and your queries are always welcomed. If you have any problem you can ask me on the WhatsApp. Thank you.